स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ रहा है और अब दुनिया के तमाम बड़े देश भी ये मान रहे हैं कि भारत लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहा है और किसी के भी दबाव में भारत नहीं आ रहा है। और इन सब के बीच अब जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक बार फिर भारत के साथ अपनी दोस्ती का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है और कहा है, post-hegemonic world, what role you expect India to play? India has made a tremendous progress in its development. From being a British colony to its modern state. Almost 1.5 billion people. Tangible development results that gives reasons to everyone's respect and admiration for India. A lot has been done in the past years under the leadership of Prime Minister Modi. Naturally, he's a patriot of his country. And his idea of Make in India, it matters. Both in economic-wise and in the ethic. So India has made tremendous steps forward in development, and the future belongs to India. It can be proud of the fact that it's the largest democracy in the world. It can also be proud of its development momentum. This is a very important foundation that India is building on. We have a special relationship with India. It has been underpinned by a very close ally relationship over many decades. We've never had any difficult issues. We've always supported each other. And that is happening right now, and I'm sure this will be the case in the future as well. Right now, economic cooperation is increasing. Prime Minister Modi has asked me to, just to give you an example, we have increased trade volumes. As an example, Prime Minister Modi has asked me to increase supply of fertilizers, and that is very important for Indian agriculture, and we've done that. Do you know how much we've increased the volume? 7.6 times. That's the increase. Not just some percentage, but 7.6 times. So almost the trade in agriculture has almost doubled. We have continued relationship in military and technical cooperation. Prime Minister Modi is one of those people in the world who is capable of conducting an independent foreign policy in the interests of its nation. Despite any attempts to do some detente or to limit something, he's like an icebreaker moving in the necessary direction for the Indian people. And I'm sure that India has a great future and an increasing role in the global affairs. कि आने वाले भविष्य भारत का ही है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर पुतिन देखते हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल वो सच्चे देशभक्त हैं और आने वाले भविष्य भारत का ही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर स्वतंत्र विदेश नीति रखने का दम है और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए ये कहा कि भारत और रूस में घनिष्ठ संबंध हैं और मोदी बिना किसी दबाव के काम करते हैं, वो किसी के भी दबाव में नहीं आते हैं। ये तमाम बड़ी बातें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से कही गई है। तो हमने देखा है कि जिस तरह से भारत ने रूस के साथ अपनी दोस्ती निभाई है, वैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी
लगातार रूस ने भारत की तारीफ की है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी रूस भारत के साथ खड़ा नजर आया है और चाहे फिर बात हो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उस बीच भी जिस तरह से भारत ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस को भी फटकार लगाते हुए ये कहा था कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बातचीत के जरिए इस पूरे मसले का समाधान निकाला जाना चाहिए। लेकिन इन तमाम चीजों से परे अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की तारीफ की है और ये कहा है कि भारत की विदेश नीति जो है वो लगातार मजबूत हो रही है। दुनिया भर में जाहिर तौर पर उसकी चर्चा भी है। भारत की विदेश नीति की तारीफ करने से अब पुतिन भी खुद को नहीं रोक पाए हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक सच्चा देशभक्त करार दिया है और पुतिन ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों में से एक हैं जो अपने देश के हित के लिए स्वतंत्र विदेश नीति को चुनने का दम रखते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा दशकों से भारत और रूस के बीच विशेष संबंध विकसित हुए हैं और दोनों देशों के बीच कोई भी अब बचा हुआ मुद्दा नहीं है, यानी तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है, तमाम समझौते भारत और रूस के बीच हुए हैं और जाहिर तौर पर इस दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश आने वाले दिनों में की जाएगी। आपको ये बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये तमाम बातें मॉस्को में एक कार्यक्रम में कही और उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, भारत का प्रतिनिधित्व जिस तरह से बढ़ रहा है दुनिया में उसका भी जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि भारत ने ब्रिटेन के उपनिवेश से आधुनिक राज्य बनने के बीच जबरदस्त प्रगति की है और इसने ऐसे विकास किया है जो भारत के लिए सम्मान और प्रशंसा का कारण बनते हैं। प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले सालों में बहुत कुछ किया गया है। स्वाभाविक रूप से वो एक सच्चे देशभक्त हैं और मेक इन इंडिया के लिए उनका विचार आर्थिक और नैतिक दोनों रूप से मायने रखता है, यानी मेक इन इंडिया की भी तारीफ की गई है। जिस तरह से भारत लगातार खुद को मजबूत कर रहा है, फिर चाहे वो तमाम चीजें निर्यात करने के क्षेत्र में हो, जो निर्यात क्षेत्र है भारत का वो बढ़ रहा है, साथ ही साथ जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच और तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसमें भारत दो टूक अपनी आवाज उठा रहा है, जिस तरह से बेबाकी के साथ अपनी राय रख रहा है, दुनिया के तमाम बड़े देश जो कुछ भी गलत कदम उठा रहे हैं उसको भारत बेबाकी से उसका जवाब दे रहा है। फिर चाहे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात कर लीजिए, वहां जिस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के तमाम बड़े देशों को आईना दिखाने का काम किया, तो फिर चाहे फिर वो अमेरिका को जवाब देना हो पाकिस्तान की मदद करने पर, ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं भारत को दिखाती हैं कि भारत बिना किसी दबाव में किस तरह से लगातार खुद को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है और ये मुमकिन हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और शायद यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वर्ल्ड लीडर हैं और आने वाला जो वक्त है वो भारत का ही है। साथ ही साथ उन्होंने विदेश नीति की भी सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी दबाव में आए काम करते हैं। और साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि भविष्य भारत का है, इसे सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर गर्व हो सकता है और हमारे बीच एक विशेष रिश्ता है, हमारे बीच घनिष्ठ संबंध है। पुतिन ने रक्षा साझेदारी और बढ़ते व्यापारिक संबंधों का भी जिक्र किया। पुतिन ने कहा कि हमारे बीच व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे भारत के लिए उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कहा और इसमें हमने कई गुना वृद्धि भी की और कृषि से जुड़ा व्यापार लगभग दोगुना हो गया है। बात का जिक्र भी उन्होंने किया, लेकिन इसी के साथ साथ जो एचसीओ की समिट हुई थी उसमें अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की जो बातचीत है, जो मुलाकात है वो हुई थी। यहाँ पर ऊर्जा और उर्वरक आपूर्ति पर केंद्रित अन्य मुद्दों की बातचीत का एजेंडा था। पुतिन ने ये साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों में से एक हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने में सक्षम है। वो भारतीय लोगों के लिए एक
आइस ब्रेकर की तरह है। भारत किसी के दबाव में नहीं आया। मुझे यकीन है कि भविष्य में भारत की एक बड़ी भूमिका होगी और साथ ही साथ जो तमाम पश्चिमी देश हैं उन पर पुतिन ने बड़ा निशाना साधा और कहा कि वे दुनिया पर हावी होने की उम्मीद में एक खतरनाक और खूनी खेल खेल रहे हैं। ये उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई। तो कुल मिलाकर जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो तमाम बातें कही वो अपने आप में भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है और विपक्षी तमाम जो नेता हैं, तमाम जो पार्टियां हैं, उनके लिए बड़ा झटका है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम विदेश यात्राओं को टारगेट करते हैं और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है ज्यादातर वक्त अपना विदेश में बिताते हैं, इससे क्या फायदा हो रहा है। लेकिन ये लगातार देखने को मिल रहा है कि दुनिया के तमाम बड़े देश एक के बाद एक भारत और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनके तमाम जो कदम उन्होंने पिछले कुछ सालों में उठाए हैं, फिर चाहे वो कोविड महामारी के दौरान दुनिया के तमाम बड़े देशों को वैक्सीन मुहैया कराने की बात हो या तमाम जरूरत की जो चीजें हैं वो मुहैया कराई गई। इतना ही नहीं, भारत ने गेहूं उस वक्त निर्यात किया, तमाम ऐसी चीजें का निर्यात किया गया जब दुनिया कहीं ना कहीं तमाम चीजों से जूझ रही थी। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध के हालात बने थे उसने कई देशों में कहीं ना कहीं जो है भूखमरी के हालात पैदा कर दिए थे और उस वक्त भारत ने गेहूं का निर्यात किया है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि भारत किस तरह से बिना किसी दबाव के आगे बढ़ रहा है। जब अमेरिका और तमाम यूरोपियन जो देश हैं उन्होंने भारत को दबाने की कोशिश की और ये दबाव भारत पर बनाया गया कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा है उसमें भारत रूस का साथ ना थे और इतना ही नहीं, रूस के साथ कोई भी जो है आयात निर्यात ना हो, ये तमाम जो व्यापारिक समझौते हैं ये खत्म कर लिए जाए, यानी इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की गई। लेकिन उस वक्त में भी भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सूझबूझ दिखाई और जिस तरह से दोनों ही देश यानी यूक्रेन और साथ ही साथ रूस को बातचीत के लिए कहीं ना कहीं इस पूरे समस्या का समाधान निकालना चाहिए, ये समझाने की कोशिश की और बिना किसी दबाव के अपनी तमाम जो समझौते थे वो कहीं ना कहीं उस पर काम किया। और इतना ही नहीं, यूक्रेन से तमाम अपने जो छात्र वहां मेडिकल की जो पढ़ाई कर रहे थे वो फंसे हुए थे, उन्हें निकालने के लिए भी जिस तरह की मेहनत, जिस तरह की कहीं ना कहीं दम भारत ने दिखाया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और शायद यही वजह है कि दुनिया के आज तमाम टॉप लीडर्स, तमाम दुनिया के बड़े देशों के जो प्रतिनिधि हैं, फिर चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, फिर चाहे वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, इसके अलावा कई बड़े देशों के जो प्रतिनिधि थे, हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो बैठक हुई थी वहां भारत की तारीफ की गई है। तो इस तरह से भारत लगातार वाहवाही बटोर रहा है। लेकिन रूस की इस तरह से रूस के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री के बारे में ये तारीफ करना ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से भारत कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तरीके से खुद को वहां स्थापित कर रहा है, किस तरीके से दुनिया के तमाम बड़े देशों को जवाब दे रहा है। और अब रूस के राष्ट्रपति भी ये मान रहे हैं कि आने वाला भविष्य जो है वो भारत का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के एक ऐसे लीडर हैं जो कि कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर सामने आएंगे। और अभी भी अगर लोकप्रियता के मामले में देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर हैं। तो ऐसे में लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन काम की वजह से ही वो लगातार दुनिया के तमाम बड़े देशों में वाहवाही बटोर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।